شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون سے کوفے کی زمین سرخ ہو گئی تھی۔ نبی زادے کے خیر مقدم کے لیے آنکھوں کا فرش بچھانے والی آبادی اب اس کی تڑپتی ہوئی لاش کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تلواروں کی دھار، برچھیوں کی یمنی اور تیروں کی نوک پر اب بھی خون کے نشانات موجود تھے۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت امام کے مقدس لاش کو شاہراہ عام پر لٹکا دیا گیا۔ کئی دن تک لٹکتی رہی۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کھلی آنکھوں سے یہ ہولناک منظر دیکھتے رہے۔ آل رسول کی جان لے کر بھی شقاوتوں کی پیاس نہیں بجھ سکی۔ ہائے رے نیرنگی عالم، زمین و آسمان کی وسیع کائنات جس کے گھر کی ملکیت تھی، آج اس کی تربت کے لیے کوفے میں گز بھر زمین نہیں مل رہی تھی۔ جس کی رحمتوں کے فیضان نے اہل ایمان کی جانوں کا نرخ اونچا کر دیا تھا، آج اسی کے نور نظر کا خون ارزاں ہو گیا تھا۔ شرم سے سورج نے منہ چھپا لیا، فضاؤں نے سوگ کی چادر اوڑھ لی، اور جب شام آئی تو کوفہ ایک بھیانک تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ مہمان کے ساتھ داغا قیامت تک کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ اچانک رات کے سناٹے میں ابن زیاد کی حکومت کے ایک منادی نے اعلان کیا، مسلم کے دونوں بچے جو ہمراہ آئے تھے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے ہر خاص و عام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی اپنے گھر میں انہیں پناہ دے گا انہیں عبرتناک سزا دی جائے گی، اور جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال کی تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا اور ان کی عمر 6 سال کی تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں غلطاں رہے کہ کس طرح انہیں ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و غوص کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ زاد راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جو ہی ان پر نظر پڑی، فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئیں، ضبط کا پیمانہ جھلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے تاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعہ سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھی گردنیں بھی خون اشان تلواروں کی زد پہ ہیں۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔
बड़े भाई ने हैरानी के आलम में दरियाफ्त किया, हमें देखकर गरिया बेख्तियार की वजह समझ में नहीं आ रही। अचानक इतनी रात को पास बुलाकर हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखना बेसबब नहीं है। इस तरह की फूट पड़ने वाली हमदर्दी तो हमारे खानदान में यतीमों के साथ की जाती है। तेज नश्तर की तरह दिल में आर पार हो जाने वाला जुमला अभी खत्म नहीं हो पाया था कि फिर फजा में एक चीख बुलंद हुई और काजी शरीह ने बरसती हुई आंखों के साथ गुलगीर आवाज में बच्चों को जवाब दिया, गुलशन रसूल के महकते गुंजो, कलेजा मुंह को आ रहा है, जबान में ताबे गुवाई नहीं है। किस तरह खबर दूं कि तुम्हारे नाज का चमन उजड़ गया है और तुम्हारी उम्मीदों का आशियाना दिन दहाड़े जालिमों ने लूट लिया। हाय, तुम परदेश में यतीम हो गए, तुम्हारे बाप को कूफियों ने शहीद कर डाला और अब तुम्हारी नन्ही जान भी खतरे में है। आज शाम ही से खून के प्यासे तुम्हारी तलाश में हैं। नंगी तलवारें लिए हुए हुकूमत के जासूस तुम्हारे पीछे लग गए हैं। ये खबर सुनकर दोनों बच्चे हैबत और खौफ से कांपने लगे। नन्हा सा कलेजा सहम गया, फूलों की शादाब पंखड़ी मुरझा गई, मुंह से एक चीख निकली और वश खाकर जमीन पर गिर पड़े। हाय तकदीर का तमाशा, अभी चंद ही दिन हुए कि माँ की ममता ने प्यार की ठंडी छांव में मदीने से रुखसत किया था। नाव उठाने के लिए बाप की शफ़क़ों का काफिला साथ साथ चल रहा था। अब ना बाप का दामन है कि पकड़कर मचल जाएं, न माँ का आंचल है कि सहम जाएं तो मुंह छुपा लें। कच्ची नींद सोकर उठने वाले अब किसे आवाज दें, कौन इनकी पलकों का आंसू अपनी आस्तीन में जज़ब करे। आह, गुंचों की वो नाजुक पंखड़ी जो शबनम का बार भी नहीं उठा सकती थी, आज इस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। परदेश में नन्ही जानों के लिए बाप की शहादत ही क्या खबर क्या कम थी कि अब खुद उनको अपनी जान के भी लाले पड़ गए थे। कज़ाए तेग बरहना लिए सर पे खड़ी थी, आंखों के सामने उम्मीदों का चिराग गुल हो रहा था। काजी शरीफ से बच्चों का बिलक बिलक कर रोना और बिछाड़े खा खाकर तड़पना देखा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, बनु हाशिम के नो निहालो, इस तरह फूट फूट कर मत रो, दुश्मन दीवार से कान लगाए खड़े हैं। तुम अपने बाप की एक मजलूम यादगार हो, ताजदार अरब की एक मुकद्दस अमानत हो। नाजिक आबगीनों को कहीं ठेस लग गई तो मैं अरसाए महशर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि किसी तरह तुम्हें मदीने के दारुल अमान तक पहुंचा दिया जाए। इसी वक्त रात के सन्नाटे में तुम दोनों हमारे बेटे के हमरा कूफे से बाहर निकल जाओ और जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा है उसमें शामिल हो जाओ। अपने नाना जान के जवारे रहमत में पहुंचकर हमारी तरफ से दरूद सलाम की नजर पेश कर देना। अच्छा जाओ, खुदा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। भीगी पलकों के साए में काजी शरीफ ने बच्चों को रुखसत किया। पासबानों और जासूसों की निगाह से छुप छुपा कर काजी शरीफ के बेटे ने बाहिफाजत तमाम उन्हें कूफा की शहर पनाह से बाहर पहुंचा दिया। सामने कुछ ही फासले पर एक गुजरते हुए काफिले की गर्द नजर आई। उंगली के इशारे से बच्चों को दिखलाया। इशारा पाते ही तेजी से बच्चे काफिले की तरफ दौड़े और निगाहों से ओझल हो गए। रात का वक्त, दहशत खेज सन्नाटा, बेहाक अंधेरा, खौफ व हैबत में डूबा हुआ माहौल और आगोश मादर की ताज़ा बिछड़ी हुई दो नन्ही जानें। ना हाथ में अक्ल शऊर का चिराग, ना साथ में कोई रफीक व रहबर। थोड़ी दूर चलकर रास्ता भूल गए। हाय रे गर्दिश अय्याम,
कल तक जिन लाडलियों का कदम फूलों की सेज पर था, आज उन्हीं की राह में कांटों की पर्चियां खड़ी थीं। जो अपने नाना जान के मज़ार तक भी बाप की उंगलियों का सहारा लिए बगैर नहीं जा सकते थे, आज वो यक्का तन्हा दश्ते गुर्बत में भटकते फिर रहे थे। कभी सफर की आदत नहीं थी, चलते चलते गिर पड़ते, कदम कदम पर ठोकर लगती, तलवों में कांटे छुपते तो उफ करके बैठ जाते, हवा सनसनाती तो दहशत से कांपने लगते, पत्ते खड़खड़ाते तो नन्हा सा कलेजा सहम जाता, दरिंदों की आवाज आती तो चौंक कर एक दूसरे से लिपट जाते, डर लगता तो ठिठक जाते, फिर चलने लगते, कभी बिलक बिलक कर माँ को याद करते, कभी मचल मचल कर बाप को आवाज देते, कभी हैरानी के आलम में एक दूसरे का मुंह तकते और कभी दुबदबाती आवाज से आसमान की तरफ देखते। जब तक पांव की सकत रही इसी कैफियत में चलते रहे। जब मायूस हो गए तो एक जगह बैठ गए, थक गए। जरा तकदीर का तमाशा तो देखिए कि रात का पिछला पहर था, ढलती हुई चांदनी हर तरफ बिखर गई थी। इब्ने ज़ियाद की पुलिस का एक दस्ता जो उन जवानों की तलाश में निकला था, गश्त करता हुआ ठीक वहीं आकर रुका। जो ही बच्चों पर नजर पड़ी, करीब आया और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? बच्चों ने ये समझकर यतीमों के साथ हर शख्स को हमदर्दी होती है, अपना सारा हाल साफ साफ बयान कर दिया। हाय रे बचपन की मासूमी, इन भोले भाले नौनिहालों को क्या खबर थी कि वो खून के प्यासों को अपना पता बता रहे थे। ये मालूम होने के बाद कि यही हजरत मुस्लिम के दोनों बच्चे हैं, जल्लादों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, मुश्किल कसी और घसीटते हुए अपने हमरा ले चले। शिद्दत कर्ब से इब्ने अकील के यतीम बुलबुला उठे, दिल हिला देने वाली फरियाद सहरा में गूंजी, हम बिन बाप के बच्चे हैं, हमारी यतीमी पर रहम करो। रात भर चलते चलते पांव में छाले पड़ गए, हमारी मुश्किल खोल दो। अब अजियत बर्दाश्त करने की सकत बाकी नहीं है, नाना जान का वास्ता, हमारे घायल जिस्म पर तरस खाओ। सुनसान जंगल में यतीमों की फरियाद सुन लो। इस नालाए दर्द से धरती का कलेजा हिल गया, लेकिन संग दिल जरा भी मुतासिर नहीं हुए। तरस खाने की बजाय जालिमों ने फरते गजब में फूल जैसे रुखसारों पर तमाचा मारते हुए जवाब दिया, तुम्हारी तलाश में कई दिन से आंखों की नींदें उड़ गई हैं, खाना पीना हराम हो गया है और तुम राह फरार इख्तियार करने के लिए जंगल जंगल छुपते फिर रहे हो। जब तक तुम काफिर करदार को नहीं पहुंच जाते, तुम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तमाचों की ज़रब से नूर के सांचे में ढली हुई सूरतें मांद पड़ गईं, चेहरे पर उंगलियों के निशान उभर आए। रोने की भी इजाजत नहीं थी कि दिल का बोझ हल्का होता। सर झुकाए, शिकंजे में कसे, कदम ब कदम जफाकारों के जुल्म सितम की चोटें खाते रहे। अब उम्मीद का चिराग गुल हो चुका था, दिल की आस टूट चुकी थी, सबको आवाज देकर थक चुके थे, कहीं से कोई चारा अगर नहीं आया। अब मौत का बेहांग साया दिन के जाले में नजर आ रहा था। इसी आलम में वो कूफा की तरफ बढ़ रहे थे। अपने मुस्तकर पर पहुंचकर सिपाहियों ने इब्ने ज़ियाद को खबर दी। हुक्म हुआ बच्चों को कैद खाने में डाल दिया जाए और जब तक दमिश्क से कोई इत्तला नहीं आ जाती, कड़ी निगरानी रखी जाए। हुकूमत के सिपाही इब्ने ज़ियाद की हदायत के मुताबिक दोनों बच्चों को दरोगा जेल के हवाले करके चले गए। दरोगा नहायत शरीफ नफ्स और दिल निसार अहले बैत था। उसने नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ हाशमी शहजादों की राहत और आसाइश का इंतजाम किया। दोपहर रात गुजर जाने के बाद अपनी जान पर खेलकर उसने दोनों बच्चों को जेल से बाहर निकाला और अपनी हिफाजत में
कादसिया जाने वाली सड़क पर उन्हें पहुंचाकर एक अंगूठी दी और अपने भाई का पता बताते हुए कहा कि कादसिया पहुंचकर तुम इससे मुलाकात करना और बतौर निशानी ये अंगूठी दिखाना, वो बाहिफाजत तुम्हें मदीना पहुंचा देगा। ये कहकर उसने डुबडुबाती हुई आंखों से बच्चों को रुखसत किया। कादसिया की तरफ जाने वाला कारवां कुछ ही दूर तैयार खड़ा था। बच्चे बेतहाशा उसकी तरफ दौड़े, लेकिन नौश्ताए तकदीर ने फिर यहाँ अपना करिश्मा दिखाया। फिर मदीने के इन नन्हे मुसाफिरों को दश्ते गुर्बत की बलाओं ने आके घेर लिया। फिर कुछ दूर चलकर रास्ता भटक गए। काफिला रास्ते से नजर से उजल हो गया। फिर रात का वही बेहाग सन्नाटा, वही खौफनाक तरीकी और सुनसान जंगल। चलते चलते पांव शल हो गए, तलवों के आबले फूट फूट कर बहने लगे। रोते रोते आंखों का चश्मा सूख गया। सुबह हुई तो देखा कि जहां से रात को चले थे घूमकर फिर वही मौजूद हैं। हाय रे तकदीर का चक्कर, इस दुनिया में कीड़े मकोड़ों और चुरिंदों परिंद का अपना रहम बसेरा है, लेकिन खानदानी नबूवत के दो नन्हे यतीमों के लिए कहीं पनाह की जगह नहीं है। जब सवेरा हो गया और हर तरफ लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई, तो कल की गिरफ्तारी का वाकया याद करके बच्चे बेकरार हो गए। दुश्मन की नजर से छुपने के लिए हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन चुटेल मैदान में कोई महफूज जगह नहीं मिल सकी। हैरानी, बेचारगी, मायूसी और खौफ व हिरास के आलम में दोनों भाई हसरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। नन्हा सा दिल, कम सनी की अकल, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। अंजाम सोचकर आंखें डुबडुबा आईं। थोड़ी ही दूर एक चश्मा बह रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, चलो वहां हाथ मुंह धो लें, नमाज फजर का वक्त भी हो गया है। खुदा की तरफ से अगर हमारा आखिरी वक्त आ ही गया है तो अब इसे कोई टाल नहीं सकता। चश्मे के करीब पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। उसका अंदर तलना खोखला था। पनाह की जगह समझकर दोनों भाई उसमें छुपकर बैठ गए। जरा सी आहट होती तो दिल धड़कने लगता, कोई राहगीर गुजरता तो दुश्मन समझकर सहम जाते। एक पहर दिन गुजरने के बाद कूफा की तरफ से एक लोंडी पानी भरने की गर्ज से चश्मे के किनारे आई। पानी में बर्तन डुबोना चाहती थी कि इस पर आदमी का अक्स नजर आया। पलट कर देखा तो दो नन्हे बच्चे दरख्त की कुह में सहमे हुए बैठे थे। सफेद पेशानी से नूर की किरण फूट रही थी। लाला की तरह बहते आरज पर मौसमी खजां की उदासी छा गई थी। लोंडी ने हैरत के आलम में दरियाफ्त किया, ऐ गुलशन दिलो बाई के नौ शगुफ्ता फूलो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। एक बार के डसे हुए थे। कुछ जवाब देने की बजाय खौफ व दहशत से लरजने लगे। फूट फूट कर बहने वाली आंसुओं से चेहरा शराबूर हो गया। लौंडी ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, नाज के पले हुए लाडलो, किसी तरह का अंदेशा ना करो, दिल से दहशत निकाल लो। यकीन करो मैं तुम्हारे घर की भकारन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। तुम ना भी अपना ठिकाना बताओ। जब भी तुम्हारा ये नूरानी चेहरा ये समझने के लिए काफी है कि तुम बीबी फातिमा के जन्नत के फूल हो। सच बताओ, क्या तुम दोनों इमाम मुस्लिम के नौनिहाल हो। लोंडी ने चेहरे की बलाएं लेते हुए कहा, फलक नशीं शहजादो, कीड़े मकोड़ों के भट से बाहर निकलो, आओ मेरे दिल में बैठो, आंखों में समा जाओ। लोंडी के इसरार पर बच्चे दरख्त की कोह से बाहर निकले और हम दर्दो गम गुस्सार समझकर उसके साथ अपना सारा हाल बयान कर दिया। उनकी दर्दनाक दास्तान सुनकर लोंडी का कलेजा हिल गया। आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगीं। दिल की बेकरार कैफियत पर काबू पाने के बाद बच्चों को चश्मे के किनारे ले गई।
आंसू पूछे, मुंह धुलाया, बालों का गुबार साफ किया और उन्हें दिलासा देते हुए महफूज रास्ते से अपने घर लाई। उनकी मालका भी खानदान अहले बैत से वलेहाना मोहब्बत का अकीदत रखती थी। अपनी मालका के सामने दोनों बच्चों को पेश करते हुए कहा, खुशनसीब बीबी, ये दोनों इमाम मुस्लिम के लाडले हैं। बिन बाप के ये 3 बच्चे हैं। परदेश में इनका कोई नहीं है। इनकी बेकसी और यतीमी पर तरस खाने की बजाय जालिम अब इन बेगुनाहों के खून के दर पे हैं। खौफ और दहशत से नन्हा सा कलेजा सूख गया है। हाशमी घराने के ये दोनों लाल डर के मारे दरख्त की खो में छुपे हुए थे। बीबी, सूरज सवा नेज़े पे आ गया है, लेकिन महगवारा मादर से निकले हुए इन शेर ख्वार बच्चों के मुंह में एक खेल भी अब तक नहीं पड़ी। मालका ये सारा माजरा सुनकर तड़प गई। गरिया बेख्तियार से उसके आंचल का दामन भीग गया। शौक में बच्चों को गोद में बिठा लिया, चेहरे की बलाई, सर पर हाथ फेरा और नहला धुला कर कपड़े बदलवाए, आंखों में सुरमा लगाया, जुल्फें संवारी और खिला पिलाकर एक महफूज कोठरी में आराम के लिए बिस्तर लगा दिया। कदम कदम पर शफकत और प्यार का फूटता हुआ सैलाब देखकर करीबी वतन बच्चों को माँ की याद आ गई। यकायक ममता की गोद में पला हुआ अरमान मचल उठा, बेताब होकर रोने लगे। फूल जैसे रुखसारों पर ढलकते हुए आंसू देखकर मालका बेचैन हो गई। दौड़कर सीने से लिपटा लिया, अपने आंचल से पल्लू से आंसू पूछने और तसल्ली देते हुए कहा, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हारे कदमों पर मेरी जान निसार, मेरी रूह सदके। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारे नाज उठाऊंगी। तुम्हारे दम कदम से हमारे अरमानों का चमन खिल गया है। मेरे आंगन में छमाछम नूर की बारिश हो रही है। इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों की तलाश में हुकूमत के जासूस और दुनिया के लालची कुत्ते गली गली फिर रहे थे। काफी देर तक घर की मालका अपने शौहर हारिस के इंतजार में जागती रही। एक पहर रात ढल जाने के बाद वो हाँफता कांपता घर में वापस लौटा। बीवी ने ये हाल देखकर पूछा, आज इतने परेशान क्यों हो? कुछ दम लेने के बाद जवाब दिया, तुम्हें शायद खबर नहीं है कि बागी मुस्लिम के हमरा उसके 2 बच्चे भी आए थे। कई दिन तक वो कूफा में रोपोश रहे। परसों सुबह को मदीने की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब उन्हें गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। कल रात के किसी हिस्सा में दरोगा जेल की साजिश से वो फरार हो गए। इब्ने ज़ियाद की तरफ से आम मनादी करा दी गई है, जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वक्त का सबसे बड़ा एजाज हासिल करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा बेगम। सुबह से इन्हीं बच्चों की तलाश में सरगर्दा हूँ। दौड़ते दौड़ते बुरा हाल है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। हारिस की बात सुनकर बीवी का कलेजा दहक से हो गया। दिल ही दिल में बेचैताब खाने लगी। मशहूर कर लेने वाली एक अदाए दिलबराना के साथ उसने अपने शौहर को समझाना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद आले रसूल के खून का नाहक बहाकर अपनी आदत बर्बाद कर रहा है। दुनिया की आसाइश चंद रोजा है। इनाम के लालच में जहन्नम का हौलनाक अजाब मत खरीदिए। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कल मैदान हशर में रसूल खुदा को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हारिस का दिल पूरी तरह स्याह हो चुका था। बीवी की बातों का कोई असर उसकी दिल पर नहीं हुआ। छंछलाते हुए जवाब दिया, नसीहत करने की जरूरत नहीं है। आकबत का नफा नुकसान मैं खुद समझता हूँ। मेरा इरादा अटल है। संदिल शौहर की नीयत बद मालूम होने के बाद मिनट मिनट पर दिल धड़क रहा था कि मुबादा जालिम को कहीं बच्चों की भनक न लग जाए। इसलिए जल्द ही उसे खिला पिलाकर सुला दिया और जब तक नींद नहीं आ गई उसे बातों में बहलाती रही।
جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹری میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، راہ راہ کر دل میں ہوک اٹھتی تھی، اے اللہ، حرم نبوت کے ان راج دولاروں کا کچھ ہو گیا تو حشر میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ دنیا قیامت تک میرے منہ پر تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دعویٰ کیا، انہیں جھوٹا دم دلاسا دے کر مقتل کی راہ گزر تک لے آئی۔ آہ، میرے عشق پارسا کا سارا بھرم لٹ گیا، میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا، ہائے افسوس۔ یا اللہ، مجھے ان محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ، ان کے آنسوؤں کا گوہر ٹپکنے سے پہلے میرے جگر میں خون ارزاں کر دے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کوفے کی بد نصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا، دونوں بچے بند کوٹری میں محو خواب ناز تھے کہ اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان انگیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی ہے، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا ہے، قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات حضرت حیدر بنت رسول حضرت فاطمۃ الزہرا اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم تم خود تو آ گئے اور ظلم کا شکار بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو ظالموں کے ہاتھوں چھوڑ آئے۔ حضرت مسلم نے نیچی نگاہ کیے جواب دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور، بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے، بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شب زندگی کی سحر ہو گئی ہے، بھیا اٹھو، ابا جان نے خبر دی ہے کہ ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں، حوض کوثر پر نانا حضور ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، دادی اماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں، بھیا صبر کر لو، اب دشمنوں کی خون اشان تلواروں کی زد سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا، ہے امی جان اب آخری وقت بھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔ چھوٹے بھائی نے ڈپڈپاتے ہوئے جواب دیا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح کو قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے، ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھیا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قضا بھی طاق ہی میں تھی، نالائے بے اختیار کی آواز سن کر جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا، اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیر بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے میں سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھڑی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تامل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں
اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر کو عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے بچوں کو، ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تماچے برسانا شروع کر دیے۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑی اور کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی، ارے ظالم، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا، ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمستان مقدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر، بن باپ کے دکھاریوں کا کچھ تو خیال کر ظالم۔ پھر ممتا کی جھونک سے اٹھی اور اس کے قدموں میں سر پٹکنے لگی، لے میرا سر کچل لے، لے میرا سر کچل لے، اپنی حفظ کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل شوہر نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تماچا مارتے مارتے جب تھک گیا تو شکی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشکیں کسی اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے خون جل گئے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹھری سے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ دروازہ مقفل تھا، اندر کا حال خدا جانے، ویسے جانوں میں اب تاب ہی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زندان کی کوٹھری سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ ارمانوں کے خون کی سرخیاں لیے لرزتی کانپتی سحر طلوع ہوئی۔ دشمن ایمان نے اپنی خون اشام تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹھری کی طرف لپکا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر کو تھام لیا۔ جفاکار نے اسے زور کا جھٹکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو گھائل کرنے کے بعد جوش غضب میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی لرز گئے، خون سے نرگسی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابھی وہ اس ہولناک دہشت سے کانپ ہی رہے تھے کہ سیاہ بخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑیں اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف کی شدت سے معصوم بچے تلملا اٹھے، بچھانے کھا کھا کر اس کے قدموں پر سر پٹکنے لگے، ٹوٹ ٹوٹ کر آہو فریاد کرنے لگے، لیکن سنگ دل کو ترس نہ آنا تھا، نہ آیا۔ لہو میں شرابور پاک طبیعت بی بی پھر اٹھی اور بھبری ہوئی شیرنی کی طرح گرجتے ہوئے کہا، آخر گھسیٹ کر کہاں لے جا رہا ہے ان بے گناہ مسافروں کو؟ دشمنی تھی تو ان کے باپ سے تھی، 4 دن کے معصوم بچوں سے کیا دشمنی ہے جو تو ان کے خون بہانے پر تلا ہوا ہے؟ ساری دنیا یتیم بچوں پر ترس کھاتی ہے اور تو نے رات سے انہیں شکنجے کسے ہوئے ہیں، تھپڑوں سے مار مار کر تو نے ان کا پھول سا چہرہ لہولہان کر دیا ہے۔ رحمتوں کی گھٹا کی طرح لٹکتی ہوئی زلفوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ گھسیٹ رہا ہے کہ بالوں کی جڑوں سے خون بہنے لگا۔ بیوی کے سینے میں غیرت ایمانی کا جوش ابل پڑا تھا، وہ اپنی جان پر کھیل کر اب رفاقت حق کا آخری فیصلہ کر دینا چاہتی تھی۔ جذبات میں بے قابو ہو کر اس نے جیسے ہی بچوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، بدبخت نے ایک بھرپور ہاتھ کا گھونسا اس کے سینے پر مارا اور وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اسی طرح اس کی تیرے ستم سے گھائل ہوئی۔ اس کے بعد سکنجے میں کسے ہوئے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر باہر لایا اور سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر درائے فرات کی طرف چل پڑا۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے مسلم یتیم زندانی اب مقتل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔
मायूस चेहरों पे बेबसी की हसरत बरस रही थी। दम बदम दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। राह राह की बिछड़ी हुई माँ की आगोश और मोहब्बत का याद आ रही थी। कुचले हुए अरमानों के हजूम में छोटे भाई की आंखें तो डुबा आईं। तवील खामोशी के बाद अब इन आंसुओं का थमा हुआ तूफान उबल पड़ा। बड़े भाई ने आस्तीन से आंसू पूंछते हुए कहा, जाने अजीज सब्र करो, हिम्मत से काम लो, अब जिंदगी की गिनती की सांसें बची हैं, इन्हें बेताबियों में मत गुजारो। वो देखो दरियाए फरात की सतह पर चश्मे कौसर की सफेद मौजें हमें सर उठा के देख रही हैं। अब इस जहां फानी से अपना लंगर उठा लो। चंद ही कदम के बाद आलम जावेद की सरहद शुरू हो जाती है। बस वो घड़ी है कि हम इस जफा पेशा दुनिया से दस्तरस से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद दरियाए फरात नजर आने लगा। जल्लाद ने अपनी तलवार चमकाते हुए कहा, सांप के बच्चों, देख लो अपना मक्तल, यहीं तुम्हारा सर कलम करके सारे जहान के लिए एक इबरतनाक तमाशा छोड़ूंगा। ये सुनकर बच्चों का खून सूख गया। किनारे पहुंचकर शक्की अजली ने उन्हें खच्चर से उतारा, मशकें खोलीं और सामने खड़ा किया। अब दोनों की खुली आंखों से सर पे मंडलाती हुई कज़ा नजर आ रही थी। बेबसी के आलम में डुबडुबाई हुई आंखों से आसमान की तरफ तकने लगे। यूं ही धुएं ताने तेर चढ़ाए कत्ल के इरादे से उसने अपनी तलवार बेनयाम की। मजलूम बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर रहम की दरखास्त की। इतने में हामती कामती गिरती पड़ती पैकर एक दफा बीबी भी आ पहुंची। आते ही उसने पीछे से अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और एक आजिज दर्दमांदा की तरह खुशामद करते हुए कहा, खुदा के लिए अब भी मान जाओ, आले रसूल के खून से अपने हाथ रंगीन मत करो। रहने गमगुसारी के जज्बे में जरा एक बार आंख उठाकर देखो, बच्चों की नन्ही जान सूखी जा रही है, तलवार सामने से हटा लो। नफ्स का शैतान पूरी तरह मुसल्लत हो चुका था। सारी मिन्नत समाजत बेकार चली गई। गुस्से में भरपूर तलवार का एक वार बीवी पर चलाया और वो घायल होकर तड़पने लगी। बच्चे ये दर्दनाक मंजर देखकर सहम गए। अब उस जल्लाद ने अपनी खून आलूद तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा और छोटे पर वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख उठा, खुदारा पहले मुझे ज़िबा करो, जान से अजीज भाई की तड़पती हुई लाश मैं नहीं देख सकूंगा। छोटे भाई ने सर झुकाते हुए खुशामद की, बड़े भाई के कत्ल का मंजर मुझसे नहीं देखा जाएगा, खुदा के लिए पहले मेरा सर कलम करो। इस लज्जाखेज मंजर पर आलम कुदस में एक हंगामा बरपा था। शहंशाह कौनैन कलेजा थामे हुए मशीयत की अदा पर साबरे शुक्र थे। सईदा की रूह मचल मचल कर अर्श इलाही की तरफ बढ़ रही थी कि आलम बेटी को तहबाला कर दे, लेकिन कदम कदम पर सरकार की पूर्णम आंखों का इशारा उन्हें रोक रहा था। हैदर खैबर शिकन अपनी तेज तलवार लिए जुल्फकार लिए हुए सरकार की जंबिश लब के मुंतजिर थे कि आने वाहिद में जिफा शारों को कैफर करदार तक पहुंचा दें। रूहुल अमीन बाले पर गिराए बंद खुद थे कि जुआनी कौसर तस्नीम का सागर लिए इंतजाम में खड़ा था। आलम बरज़ख में हिलचुल मची हुई थी। मलकूत आला पर सक्का तारी था कि एक मर्तबा बिजली चमकी, सितारा टूटा और फजा में दो नन्ही चीखें बुलंद हुई। मरकज आलम हिल गया, चश्म फलक छुप गई, हवाएं रुक गईं, बहारे थम गए और धरती का कलेजा शक हो गया। हैरत का तिलस्म टूटा तो अमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों के सर कटे हुए खून में तड़प रहे थे और लाशें बाअफरात की लहरों में गोद में डूबती जा रही थीं। सलाम हो तुम पर ए मोहम्मद इब्राहिम, ए इमाम मुस्लिम के राज पिलारो, तुम्हारे मुकद्दस खून की सोखी से
آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔